Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be fine and enjoying your summer vacation. चूँकि गर्मी ज़्यादा है students, it is very hot. So be very careful about your health. गैर ज़रूरी कामों के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए आप बाहर कोशिश करें, घर से बाहर ना निकलें. Now come towards our today's lecture, student. Today I am going to tell you about structural types of sentence. We have three types: simple sentence. Number two, compound sentences, and number three, complex sentences. We have these three kinds. Regarding to structure, we have these three kinds: simple sentence, compound sentences, and complex sentences. Simple sentence is simple, that when I say there is a subject and a predicate, this is called simple sentence. Before going to tell you compound sentence, I'm going to tell you about some other things like clause. What is clause? Clause is a part of a long sentence, we can say. Clause is a group of words. The first point is, it is a group of words. The second point is, it gives us a bit sense. And the third point is very important, that it has a subject plus verb. These 3 points are very important in clause. जैसे कि phrase में, phrase is also a group of words. It doesn't give us any sense and it doesn't have any subject and verb. But in clause, it is a group of words also, or it is a part of a long sentence. It gives us a bit sense and it has a subject and verb. So we have how many kinds of clauses there? We have dependent clause, the other one is independent clause, and the third one is relative clause. We have these three kinds of clauses. The other name of this dependent clause is subordinate clause. Why this is called subordinate clause? Because it always starts from subordinating conjunctions. Dependent clause, its other name is subordinate clause. Why this is called subordinate clause? Because it always starts from a subordinating conjunctions. Come towards dependent clause. Its other name is principal clause or main clause. And the third one is relative clause. Relative clause is always starts from a relative pronouns. What are relative pronouns? Who, whom, whose, which, and that. These are relative pronouns: who, whom, whose, which, and that. So whenever a clause starts from one of these relative pronouns, it is called a relative clause. And the other name of relative clause is, it's very important point, it's adjective clause. Relative clause का दूसरा नाम adjective clause. Relative clause वो clause है जो इनमें से relative pronouns में से किसी एक से शुरू होगी, तो उसे relative clause भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है adjective clause. So I hope कि आपको dependent clause, independent clause और relative clause की समझ आई होगी before understanding compound sentences and complex sentences. So now compound sentences. Now what are compound sentences? Now listen it very carefully, dear students. Compound sentences, when there is at least two independent clauses. Two independent clauses. One independent clause plus another independent clause with joins with coordinating conjunctions. Now the question arises, what are coordinating conjunctions? Come toward these conjunctions now. We have coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. We have three kinds of these conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होते हैं? इसके लिए dear students, remember this word, fanboys. What is this? Fanboys. A fanboys stands for, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have these 7
coordinating conjunctions. So what is compound sentence? The compound sentence is that there is at least two independent clauses when joined with these coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions acts like a bridge between the two sentences. For example, I am hungry. ये क्या है? ये कौन सी क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? विच डजंट नीड एनी अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब इटसेल्फ. वो क्लॉज जिसे अपना मतलब समझाने के लिए किसी दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है. इट इज इनफ. आई एम हंग्री. मैं भूखा हूं. It gives complete thought. And the other one is I have no money. अगर ये देखें तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसको देखें, that is also an independent clause. Both these clauses are independent because they doesn't need any part of sentence, any other part of sentence to describe themselves. Whenever we join this fanboys, one of coordinating conjunctions in the fanboys, तो वो क्या होगा? But I am hungry, but I have no money. मैं भूखा हूं लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है टू ईट और एनीथिंग. तो ये आपके लिए यहां ये क्या है? दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इसके अगेंस्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो ज्यादा है जिसमें आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं although, because, since, as soon as and etc etc. वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस की समझ आ गई होगी. सिंपल सेंटेंस क्या था? सिंपल सेंटेंस वो था जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है. दैट इज सिंपल. कम टुवर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस से मैंने क्या बताया आपको? मैं क्यों लेके गया आपको पहले क्लॉज की तरफ? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में ये बताया जाता है दैट इट हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो फिर क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि सर व्हाट इज क्लॉज? इसलिए मैंने पहले आपको क्लॉज बताया. वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस: डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड थर्ड वन इज रिलेटिव क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज का मैंने आपको सेकंड नाम भी बताया. इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी. इनके अलावा जो आएंगे वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. ठीक हो गया. फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या थी? डिपेंडेंट क्लॉज तो वो हो गई ना कि जो which needs another part of a sentence. Without that part, it doesn't give us a complete sense. That is called a subordinating clause or dependent clause. और independent clause क्या हो गई? Independent clause वो हो गई which doesn't need any other part of a sentence to describe itself. It is enough itself to describe itself. वो अपना मतलब बयान करने के लिए वो अकेला काफी है. जैसे ये पार्ट है या ये पार्ट है. ये इंडिपेंडेंट. इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. अब आ जाए हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस में तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच जॉइन वन ऑफ दीज फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द सेंटेंस विच हैज at least one dependent clause and at least one independent clause. It joins by any subordinating conjunctions. यानी complex sentence क्या है? complex sentence वो है कि जिसमें at least एक dependent clause है और at least एक independent clause है, जिन्हें join किया जाता है subordinating conjunctions से. जो other than this है, जो other than coordinating conjunctions हैं, वो subordinating conjunctions कहलाए जाते हैं. For example, as soon as I reached the station, the train had gone. As soon as I reached the station, the train had gone. As soon as I reached the station, the train had gone. Now students, just tell me, where is the dependent clause here in this sentence? इस पूरे sentence में dependent clause कहाँ पे है? याद रखें, remember it that the other name of dependent clause is subordinating clause, subordinate clause, which starts from subordinating conjunctions. Where is the subordinating conjunctions? This is the subordinating conjunction. As soon as. तो वो clause जो किसी भी subordinating conjunction से start होगी, that is called dependent clause या subordinate clause. अब अगर देखें ये वाली clause, the train
had gone, अगर इस क्लॉज को मैं रब कर दूं तो हमारे पास सिर्फ रहेगा as soon as I reached the station, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, और फिर उसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। तो आप लोग के जहन में क्वेश्चन arises in your mind, सर then what happened then, क्या हुआ फिर सर, जैसे ही आप स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ। तो हमारे जहन में क्वेश्चन कब उठता है, जब हमें एक चीज़ कंप्लीट समझ नहीं आती, तो नेचुरली हमारे जहन में एक क्वेश्चन उठेगा। तो इसे देख के as soon as I reached the station, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये अधूरा मीनिंग दे रहा है हमें, अ बिट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस हमें मिल रहा है। इस हिस्से को ज़रूरत है इस पार्ट की, जब तक कि मैं ये पार्ट इसके साथ नहीं लगाता तो ये मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सो दिस वन as soon as I reached the station is डिपेंडेंट क्लॉज। और द ट्रेन हैड गॉन, अगर मैं ये हटा दूं और सिर्फ लिखा हो द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी, इट इज अ कंप्लीट सेंस, इट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, नो एनी क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड। तो फिर ये द ट्रेन हैड गॉन, ये हमारे लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो वो सेंटेंस जिसमें एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। और उसको ज्वाइन किया जाता है या वो स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came. So this one, the patient had died, ये कौन सी क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है because it gives us a complete sense। अगर यहां से हम देखें before the doctor came, this clause starts from a subordinating conjunction before, and अगर दोबारा ये देखें कि before the doctor came है, डॉक्टर के आने से पहले, तो ये it doesn't give us a complete sense, इसको जरूरत है इसकी। विदाउट दिस पार्ट ये हमें पूरा मीनिंग नहीं देगा। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो वन डिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन देयर इज वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, देखेंगे। अब मुझे सिर्फ एक जनरल चीज मैं आपको बताता हूँ रिटन इंग्लिश के लिए, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कुछ थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है। रिटन इंग्लिश की बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैं बता देता हूं आपको, बेटा याद रखें जनरल बात आपको, कि व्हेनेवर अ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे यहां पे है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो फिर हमने बीच में वी हैव टू पुट दिस कॉमा, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिटन इंग्लिश। यहां देखें डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आई है, इंडिपेंडेंट स्टार्ट में आई है, तो फिर देयर इज नो नीड टू पुट द कॉमा, बट हियर वी हैव टू पुट द कॉमा व्हेनेवर डिपेंडेंट क्लॉज कम्स एट द स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दीज स्ट्रक्चरल काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बिहाफ पे मैंने आपको बैकग्राउंड में क्लॉज भी बताया कि 3 काइंड्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। मैंने आपको यहाँ कोशिश की कि आपको इस थोड़े वक्त में ये भी बता सकूं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, एंड व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज चूंकि यहाँ पे उसका इतना पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको मुख्तसरन बताया कि उसका सेकंड नाम एडजेक्टिव क्लॉज है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा इसलिए आपको ये तमाम लेक्चर की कोशिश की, बैकग्राउंड में आपको मैं बताऊं कि क्लॉज और उसके बाद क्लॉज की काइंड्स और फिर साथ में कंजक्शंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस में क्लॉजेस भी हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का भी इस्तेमाल है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का भी इस्तेमाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, आप इसे समझ चुके होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम एट योर सर्विस एनी टाइम। जो भी इसके हवाले से क्वेश्चन हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जो आपके लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।